Hello, children. Today we will read chapter number 8, Sona's Adventure, part 2. Sona is sad and hurt by the other animals' words. His mother helps him to see himself differently. And when he starts to believe in himself, the other animals see it too. Section 1. When Sona saw his mother, he burst into tears. "What's the matter?" his mother asked. More tears rolled down Sona's cheeks. "I don't like the animals. They are horrid. They made fun of me and called me names. I'll never play with them." He cried and told his mother all that had happened. सोना को जब मम्मी के पास आए तो वो ना रोने लग गया. तो मदर उनसे पूछा, "Why are you crying? क्या हो गया?" Then Sona said that these animals are not good. They are teasing me. उन लोग मुझे टीज कर रहे हैं, मेरे को तरह तरह के नाम से पुकार रहे हैं. मैं उनके साथ नहीं खेलूँगा. "Come now, don't cry," said his mother. "They laugh at you because they are silly." ठीक है, मेरे साथ आओ. उन लोग तुमको देख के हंसते हैं ना, कोई बात नहीं. They are silly. उन लोग बेवकूफ़ है. They don't know why we have humps. उन्हें पता नहीं है हमारे पास humps क्यों हैं. If they did, they would want to have humps too. Why they would even want to have our flat feet. अगर उनको पता होगा तो उन्हें भी हम चाहिए होगा और उनको भी चाहिए कि हमारे जैसा फ्लैट फीट उन्हें भी होगा. But they are not nice. Why do we have them? His mother said, "You remember what I said about the way we store water. The hump is where we store fat. When we get nothing to eat for days, this fat is our store of food." जब हम लोग आ रहे थे तब मैंने आपको बताया कि ये हम्प में हम अपने खाना को स्टोर करके रखते हैं. "How?" asked Sona. "When we eat," replied his mother, "part of our food turns into fat and collects in our humps." तो मम्मी ने बताया कि जब हम खाना खाते हैं, खाने का कुछ हिस्सा हम उस हम्प में कलेक्ट करके रखते हैं, वो जो फैट में टर्न हो जाता है. When we find little or no food for days in the desert, this fat stops us from getting weak with hunger. It gives us strength to walk on till we come to an oasis like this one where there is food and water. तो इसका मतलब क्या है, जब हमको खाना नहीं मिलता है तब हम उसको हम्प में स्टोर करके रखते हैं, है ना. थोड़ा थोड़ा करके हम उसमें से खाते हैं और जब तक हम वहाँ पर ओएसिस तक नहीं पहुँचते हैं. ओएसिस मीन्स वेयर देयर इज़ वाटर, जहाँ पर पानी है और उसके चारों तरफ क्या है, पेड़ पौधे उगे रहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एन ओएसिस. सेक्शन 2. एंड वॉट अबाउट आर लॉन्ग लेग्स एंड फ्लैट फीट. और हमारा लॉन्ग लेग्स और फ्लैट फीट क्यों है मम्मी? "They are very useful," said his mother. "With our long legs we can walk fast." हमारे लॉन्ग लेग्स हैं, लंबे लंबे पैर है करके हम लोग बहुत फास्ट जल्दी जल्दी चलते हैं. "If our feet were not round and flat, they would sink deep into the sand and get stuck." अगर हमारे फीट पंजे फ्लैट नहीं होते, राउंड नहीं होते हैं, तो जब हम सैंड के रेत के ऊपर चलेंगे तो वो बहुत अंदर चले जाएगा और चिपक जाएगा. If other animals knew this, they would envy us. दूसरे एनिमल्स को ये पता चलेगा तो वो हम लोग से जलेंगे. "And our long necks, what use are they?" asked Sona, feeling much happier. तो उसको अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है. He is very happy. खुश हो रहे हैं. तो क्यों हमारे पास लॉन्ग नेक क्यों है मम्मी? "We have very long legs, so we have to have a long neck," replied his mother. हमारे पैर लंबे लंबे हैं इसलिए हमारे गला भी, नेक भी लंबे हैं. "Otherwise, how could we reach anything on the ground?" अगर हमारा गला ऊंचा है, लंबा है करके हम नीचे ज़मीन में जो खाना है हम खा सकते हैं, अगर नहीं तो हम लोग कैसे खाना खाएंगे? "Our long necks also help us to reach leaves on tall trees and see far far away." हम लोग हमारे लॉन्ग नेक्स है करके इसलिए हम लोग दूर दूर तक की भी दृश्य देख सकते हैं. Our humps, our long legs, our flat feet and our long necks are all of great use to us. You should be proud of them.
सोना वॉज नाउ वेरी हैप्पी. सोना को अभी बहुत खुशी हुई. ही एट अप ऑल द फ्रेश ग्रीन लीव्स हिज मदर हैड प्लक्ड फॉर हिम. मम्मी उसके लिए ग्रीन ग्रीन लीव्स तोड़ के रखे थे. सोना ने सारा खा लिया. देन ही फेल asleep. फिर वो सो गया. द नेक्स्ट डे ही सेट ऑफ अगेन. द रैबिट, द फॉक्स, द स्नेक and the goat were playing. Sona did not even care to look at them. नेक्स्ट मॉर्निंग ये सारे एनिमल्स खेल रहे थे और सोना उनको ध्यान भी नहीं दे रहे थे. हेड हेल्ड हाई ही वेंट हिज वे. अपना सर ऊंचा करके वो चले गया. लेट्स फॉलो हिम सेड द फॉक्स. फॉक्स बोले चलो हम उसके पीछे पीछे उनको अनुसरण करते हैं. They followed him, laughing and making fun of him. Sona paid no attention. He kept on walking. Section 3. A fig tree grew at the edge of a pool. Fig means एक फल होता है, अंजीर. पूल के किनारे एक पेड़ उगा हुआ था. Its big ripe fruit was very tempting. Delicious. Tempting means was delicious, स्वादिष्ट. तो उसमें उस पेड़ में फिग ट्री में जो फल लगे हुए थे वो राइप हो गया था, पक गए थे. सोना लिफ्टेड हिज हेड, पुल डाउन अ फ्यू फिग्स एंड टेस्टेड देम. सोना अपना सर ऊंचा करके कुछ फल तोड़ा और उसको टेस्ट किया. दे टेस्टेड एज नाइस एज दे लुक्ड. बहुत टेस्टी था. इट वॉज वेरी डिलीशियस. सोना वॉज ईटिंग हिज फिल. सोना वॉज ईटिंग हिज फिल. ईटिंग हिज फिल में तो उसको जितना चाहिए था, जितना उसको खाने की इच्छा हो रही थी उतना वो खाए जा रहा था. द अदर्स वॉच्ड हिम. सब कोई उसको देख रहे थे. ऑल ऑफ देम वांटेड टू ईट द फ्रूट बट द ब्रांचेस वर टू हाई. सबको उसको खाने की इच्छा हो रही थी बट कोई उसको खा नहीं पा रहे थे क्योंकि ब्रांच मतलब जो पेड़ का जो डगाल है बहुत ऊपर था. डू यू थिंक ही विल गिव अस सम इफ वी आस्क हिम नाइसली, आस्क्ड द डियर. फिर डियर ने पूछा तुमको क्या लगता है अगर हम उनसे कुछ थोड़ा सा मांगेंगे वो हमें देगा. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क हिम सेड द गोट प्राउडली. गोट बोलता है नहीं नहीं मैं उनसे कुछ मांगने वाला नहीं हूँ. आई विल गेट सम फॉर अस. हमारे लिए मैं जाके तोड़ता हूँ. यू नो आई कैन क्लाइंब एनीथिंग. तुम्हें मालूम है मैं कहीं भी चढ़ सकता हूँ. स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लेग्स द गोट पुट हिज फोर लेग्स ऑन द ट्री एंड स्ट्रेच हिज नेक टू रीच अ ब्रांच. फिर गोट किया क्या, हाइंड मतलब अपने पीछे का लेग ऊंचा किया, फिर सामने का लेग से पेड़ में चढ़ने का कोशिश किया और अपने गला से गला स्ट्रेच किया, गला को फैलाया वो उस डगाली तक पहुंचने के लिए. ही स्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेच्ड, लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्प्लैश. और गला ऊंचा करते गया और पैर ऊपर करते गया, करते 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 क्या पहुंच नहीं पाया, अपना बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया. He fell into the pool. पूल में तालाब में गिर गया. Help, help, he cried. All his friends ran to the edge of the pool, but none of them could help him. सब उसके दोस्त लोग पूल के किनारे चले गए, but कोई उसको सहायता नहीं कर पा रहे थे. They were all too small to get him out of the water. सब छोटे छोटे थे, उनको पूल से खींच के बाहर निकाल नहीं पा रहे थे. They turned to Sona. Oh, please help me. They all cried together. सोना सोना हम लोग की सहायता करो. You are so big. आप बहुत बड़े हो. Sona quickly waded into the pool. Get on my back. सोना तुरंत पूल में चले गया और उससे बोला मेरे पीठ में चढ़ो. He said and lowered himself. और अपने आप को थोड़ा झुका लिया. The goat climbed on his back gratefully. गोट उसके पीठ में, कैमल के पीठ में, सोना के पीठ में बैठ गया. Sona carried him safely to the edge. सोना धीरे धीरे उसको किनारे लेके आ गया. थैंक यू, दैट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू. आई एम सॉरी आई मेड फन ऑफ यू. लेट्स बी फ्रेंड्स सेड द गोट. तो गोट को समझ में आ गया कि नहीं हमें किसी को छेड़खानी नहीं करना चाहिए. उसको बाहर निकाला करके ही सेड थैंक यू एंड आई एम सॉरी. मैंने आपको टीज़ किया, आपको छेड़ा था करके. आई एम सेइंग सॉरी. मैं और कभी आपको ऐसे नहीं बोलूँगा. अब हम दोस्त बनेंगे. कम एंड प्ले विथ अस सेड द रैबिट. रैबिट ने बोला चलो आज से हम दोस्त बन गए, हमारे साथ खेलो. एंड गिव मी अ राइड एज यू हैव द गोट. कम ऑन सेड सोना.
feeling very happy. And from that day, they all became good friends. उसी दिन से उन लोग सब कोई फ्रेंड्स बन गए और सब कोई एक साथ खेलने लगे. Thank you. You should read the lesson.